Hello everyone, welcome back to our channel, and today here we are with another enthusiastic video of chapter number 15, class 8 science, CBSE NCRT solutions, some natural phenomena. So today we'll be doing the back of the chapter questions. Which of the following cannot be charged by friction? And before starting with the answer, and the discussion, I want you all to please like and subscribe our channel and support us and help us reach 1k subscribers so that we can connect with you live and have your doubts there. So let's start. First question is that which of the following cannot be charged easily by friction? So, a plastic scale, a copper rod, or an inflated balloon, or a woolen cloth. So, which of these will not be charged? Obviously, it would be option number B, a copper rod. Now, why? As we all know, it is a metal, and as I told you earlier, that metals conduct electricity. Okay, they are conductors, they are not insulators, whereas the other things are all insulators, so they could keep charge within them. But at the other side, a copper rod, which is a type of metal, will not be able to keep a charge with it. Okay, I hope you all got it. Okay, so just a minute. Yes. So now the next question says, when a glass rod is rubbed with a piece of silk cloth, the rod, option A, and the cloth acquires a positive charge. Okay, so now ये same experiment we have studied in our class 8 science book कि when a glass rod is rubbed with a piece of silk cloth, the rod and the cloth both acquire a positive charge. That is not correct. हमने पहले ही मतलब पढ़ा हुआ है. क्या था वो definition term क्या था? वो था convention. Okay, convention to call the charge required by a glass rod when it is rubbed with a silk cloth as positive. एक convention की जब जो glass rod है उसको पॉजिटिव का कहने का और जो सिल्क क्लॉथ है वो नेगेटिव. तो क्या होगा? लेट्स लुक एट ऑप्शन बी, बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज. सिल्क क्लॉथ, द रॉड बिकम्स पॉजिटिव चार्ज वेयर द क्लॉथ हैज नेगेटिव चार्ज. येस, दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट. सो इसका ऑप्शन क्या हो गया? बी. इसका आंसर इज बी. यू कैन सी हियर द सॉल्यूशन फॉर इट इज बी, एंड हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी बी है. सो दोनों क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं वो हैं बी. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो आई होप कि आपको पहले क्वेश्चन समझ आ गया होगा, एंड जो इस कन्वेंशन की मैं बात करी थी वो हमने पढ़ा हुआ है हमारे बुक में, आपको याद आ गया होगा. कन्वेंशन टू कॉल द चार्ज रिक्वायर्ड बाय ग्लास रॉड व्हेन इट इज रब विद सिल्क एज पॉजिटिव. ये डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम के अंदर. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 3. Write true against true and false against false in the following statements. A. Like charges attract each other. Let's do it up. लाइक चार्जेस कभी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. अगर अब इससे हम लोग ऐसे समझेंगे, हम ऐसे समझेंगे, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, नो नेगेटिव plus negative, no, but positive plus negative, yes. ओके, सो अब इस समय क्या पता चला? इतना मैंने इतना लिखा है तो सबको क्या समझ आया? यहाँ जो मैंने इतना ये पूरा लिखा है यहाँ पे, इससे आपको क्या समझ आया कि जो सेम चार्जेस होते हैं, लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर. ओके, आई होप आप ये बात समझ गए होंगे. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ अ चार्ज ग्लास रॉड अट्रैक्ट्स अ चार्ज प्लास्टिक स्ट्रॉ. ट्रू और फॉल्स? एक चार्ज ग्लास स्ट्रॉ के एक प्लास्टिक स्ट्रॉ को अट्रैक्ट करेगी. वेरी ट्रू. ओके,
The lightning conductor cannot protect a building from lightning. एक lightning conducting building को lightning से नहीं बचा सकता. It's false. True, false. Okay. Obviously lightning conductors बनाए किस लिए जाते हैं बिल्डिंग में, ताकि वो बचा सके. एंड यहाँ पे मैंने आपको सोल्यूशन भी दिए हुए हैं इसके साथ साथ एक्सप्लेनेशंस भी. That a charged plastic rock contains negative charge on its surface while a glass rod contains positive charge on its surface. They are unlike and it's in nature, so they both will for sure attract each other. Now false one. When lightning occurs, the atmospheric charges are transferred to the earth directly by lightning conductor and therefore the building is protected from lightning. पहले मैंने आपको बताया था lightning conductor का एंड हमारे बेस में होता है, जो नीचे ज़मीन होती है उसमें. ओके. एंड जो दूसरा होता है, लेट्स चेंज द कलर. एंड बेस में होता है, एक होता है ऊपर लगा हुआ जिसका बाहर निकला हुआ होता है टॉप से ऐसे. एंड हमने ये चीज़ हमने पहले ही पढ़ी हुई है, तो इसमें आई डोंट थिंक कि इतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है. बट स्टिल आई टेल यू कि जो लाइटनिंग कंडक्टर होता है वो एक डिवाइस चीज़ होता है बिल्डिंग से प्रोटेक्ट करने के लिए इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग से. और ये वाली जो मैं आपको ग्रीन में दिख रही है, ये मेटालिक रॉड है. ये टॉल होती है बिल्डिंग से ज़्यादा. और ये जो दिख रही है ना, ये ग्रीन मेटालिक रॉड. ओके. मैं आपको ऐसे इसमें एक ऐसी टॉल मेटालिक रॉड होती है जो ये सपोज एक बिल्डिंग है, ये ग्राउंड है. ओके. तो ये एक टॉल मेटालिक रॉड होती है जो कि ये बिल्डिंग के ऊपर, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये टॉल मेटालिक रॉड जो है वो बाहर निकली हुई है ताकि जो लाइटनिंग है वो उसके ऊपर आ जाए. क्योंकि लाइटनिंग हमें इतना पता है कि हमेशा टॉलर सर्फेसिस पर अट्रैक्ट होती है, शॉर्टर सर्फेसिस पर नहीं होती है. तो बिल्डिंग के अंदर ये इंस्टॉल्ड होती है वॉल्स के अंदर जब इसका कंस्ट्रक्शन होता है उसी वक्त. और एक एंड जो रॉड का होता है बाहर रखा जाता है एयर के अंदर, और दूसरा होता है उसे अंदर बरी किया जाता है, उसे अंदर दबा दिया जाता है ग्राउंड में. एंड जैसे इस पर सपोज लाइटनिंग आई, हम कलर लेते हैं ब्लू. ओके. सो लाइटनिंग गिरी. ओके. लाइटनिंग गिरी, इसके अंदर गई, इसके अंदर ट्रांसफ़र होते होते, क्योंकि मेटल ऑलवेज, तो फिर अर्थिंग हो गई इसकी और ये ग्राउंड में चली गई. एंड ग्राउंड में नीचे एक बना होता है टाइप ऑफ कॉपर प्लेट. एक ये होती है ना, इसे कॉपर प्लेट कहते हैं. सो इस कॉपर प्लेट में जाके ये कॉपर प्लेट क्या करती है, इसे और अंदर भेज देती है. क्योंकि कॉपर ये मेटल्स हमें पता है कि नहीं मतलब दे आर कंडक्टर्स. सो बस इतना ही हमें इस क्वेश्चन में समझना. Now next is earthquakes can be predicted in advance. It's false. Earthquake, even though it's known, but there are no instruments that are invented to detect them in advance. Therefore earthquakes cannot be predicted in advance. Now question is, sometimes a crackling sound is heard while taking off sweater during winters. Explain why. तो ये जो क्वेश्चन है ये हमें पता है क्योंकि हमने ये स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर फर्स्ट पेज पे पढ़ लिया था कि जो अब इनसे क्या पूछ रहे हैं कि एक्सप्लेन की कब क्रैकलिंग साउंड क्यों आती है. बिकॉज जब फ्रिक्शन होता है, जब स्वेटर एक दूसरे से रगड़ेंगे तो क्या होगा, फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा. फ्रिक्शन एक दूसरे से ऐसे प्रोड्यूस हुआ हमारा फ्रिक्शन, तो क्या हुआ, तो फिर ऑब्वियसली एक आवाज़ आएगी. हमने मैं आपको इसे आपको एकदम इसे ड्रॉ करके दिखाती हूँ. ये हमारा स्वेटर है. ओके. एंड ये हमने इसे पहना हुआ है. ये थोड़ी अच्छी ड्राइंग नहीं आई है, इसमें थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा हो गया. ये हमने इसे पहना हुआ है. ओके. हमने इसे पहना हुआ है. एंड नाउ व्हाट वील डू, एंड उसके बाद हमने इसे उतारा तो हमारी जो बॉडी है उससे उतरा. और हमारी बॉडी, हमें पता है, हमें एक बात हमें स्टार्टिंग से, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड. यस, हमें पता है कि जो वूल है, हमारे शर्ट्स होते हैं जो कॉटन से ब्लेंडेड होते हैं, कोई क्या किसी भी सिंथेटिक फाइबर से. तो जो फ्रिक्शन स्वेटर हमारी बॉडी के बीच में आता है जब से हम लोग निकालते हैं, तो उससे जो स्वेटर है वो चार्ज हो जाता है.
और जब ये हम लोग स्वेटर निकालते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस, तो जो क्रैकलिंग साउंड है इस प्रोसेस में हर्ड होती है। अब यही मैंने यहाँ पे वर्ड्स में आपको लिख के दिया हुआ है, ये हम लोग अभी रीड करेंगे कि हमने ये स्वेटर पहना हुआ है, ये हमारी ह्यूमन बॉडी है, ये हमारा, इसके अंदर हमने कुछ भी नहीं पहना है, फिर कुछ भी पहना हुआ है, अगर नहीं पहना तो भी कोई नहीं, अगर कुछ पहना हुआ है तो भी नहीं। तो हमने उतारा, वी टुक इट ऑफ, ओके, एंड हमने उसे उतार के रखा, तो एक क्रैकलिंग साउंड आई उस प्रोसेस के अंदर। क्यों आई? क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन प्रोड्यूस हुआ है। जब हमने उतारा तो हमारी बॉडी से वो गया, हमारी बॉडी है, अब उससे गया तो उस पर टच होके उस पर फ्रिक्शन होके गया। एंड यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दिस फिनोमिना मैनी टाइम्स एंड शैटर के आज तो कल रात को मैंने भी अपनी वुलन रज़ाई के साथ, अपनी क्विल्ट के साथ एक्सपीरियंस किया। तो आपने मतलब बहुत बार एक्सपीरियंस किया होगा, बट आपने अभी आपको समझ आया कि होता क्या है ये, तो आपको अब समझ आने लग गया है। सो अब इससे वर्ड्स में क्या है ये आप देख सकते हैं। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।